We finished our class at this point last time, and I told you that we will resume our class from this point. This is very important concept. From exam point of view, from professional point of view, both. आपकी बुक में पीछे क्वेश्चन बैंक है, आप देखिए पीछे करीब 10 से 12 अटेम्प्ट में यही टॉपिक 3 से 4 बार रिपीट हुआ है. इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. प्रोफेशनली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. बहुत आराम से समझना, मैं बहुत आराम से इसको कैरी भी करूंगा. ऑडिट के प्रोसेस की अंदरूनी कमजोरी क्या है? एक पिक्चर थी अपहरण, पता नहीं वो अजय देव, गंगा जल या अपहरण, दो में से कोई एक थी. उसमें कैरेक्टर था एक डीएसपी गंगाजल. उसका बड़ा रिपीटेड डायलॉग था, ई तो साला होना ही था. बड़ा रिपीटेड डायलॉग था उसका, ई तो साला होना ही था. ये टॉपिक यही है, यही है एग्जैक्टली टॉपिक यही है. बहुत आराम से समझना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन के लिए तो है, एग्जाम के लिए भी है ही. लिमिटेशन मीन्स व्हाट? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये. लोग जनरली इसको रटा के निकल जाते हैं कि ये है ये है ये है, इसको रट लेना, याद कर लेना, आ जाएगा, लिख देना. पर रटने का कोई मतलब थोड़ी है. लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, लिमिटेशन ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट. नाउ यू टेल मी व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट. वी हैव बीन डिस्कसिंग इट फॉर द लास्ट 2-3 days. That audit is a systematic examination of financial information of any entity. And for doing this systematic examination, you need to collect audit evidence. You need to evaluate them. You can do this evaluation by yourself. You can get this evaluation done by others also. And then you arrive at opinion. So, from an overall audit plan to opinion. This is the journey. आप पूरी कोशिश करते हैं कि ऑडिट में कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए. आपको P&L दिया गया है, बैलेंस शीट दी गई है, आप उसको थ्रू आउट थारोली ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं. कोई भी कमी होती है पकड़ने की कोशिश करते हैं. नाउ यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड और एरर. एक लिमिटेशन तो आपके दिमाग में अभी आ जानी चाहिए थी कि अगर कोई डीप लेड फ्रॉड है तो शायद ऑडिटर उसको ढूंढ के नहीं ला पाएगा. So you make out an overall audit plan and then you arrive at an opinion. And the name of the game was audit and assurance.
यहीं से लिमिटेशन शुरू होने वाली है। ये जो आप एश्योर करते हैं, किसको करते हैं? जनता को करते हैं, स्टेक होल्डर्स को करते हैं। इस जनता और स्टेक होल्डर्स में कौन शामिल होते हैं? वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल who may have a direct interest in your business, who may have an indirect interest in your business. These are the people. So the question is, what kind of assurance are you going to provide them? And what is the extent of this assurance? किस सीमा तक आप उनको एश्योर करते हैं? There are 4 kinds of opinion, you know. The basic question is, if the auditor has expressed a clean opinion, then you know the language of the clean opinion, that in our opinion balance sheet gives true and fair view of a state of affairs. P&L account gives true and fair view of profit earned. So if you are giving a clean opinion, should it be assumed that everything is clean? Everything is true? Everything is fair? Should it be assumed or not? You are a professional. You have received thorough education. You are skilled, you are competent, and you are giving this opinion that in our opinion this balance sheet is true and fair. So should the reader, should the user has a right to assume, now mind my words, has a right to assume that everything is true and fair or not? Has a right to assume? वो मान ले कि हाँ सीए साहब ने कह दिया सब सही हो गया, उसे मानने का अधिकार होना चाहिए, है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई ऐसा है जो कहता है नहीं साहब नहीं होना चाहिए? कोई ऐसा है? एक्चुअली क्वेश्चन ही यही है कि यही लिमिटेशन है। यूजर को ये मानने का अधिकार तो है, लेकिन 100% नहीं। He has a right to assume that yes, if a qualified CA has expressed his opinion that this balance sheet, this P&L account is true and fair, then of course it should be true and fair. But he should not assume that 100% purity is there. जैसे कहते हैं ना, अच्छा सोना खरीदने जा रहे हैं तो हॉलमार्क वाला खरीदिएगा और कितने कैरेट वाला खरीदिएगा? 24 कैरेट वाला। लेकिन वो दुकान वाला भी कहता है कि सर ये मत मान लीजिएगा कि ये प्योर गोल्ड है। कहता है कि नहीं कहता है? जो हॉलमार्क है और जो 24 कैरेट गोल्ड है, क्या आप में से कोई ऐसा है जो 24 कैरेट गोल्ड मुझे मार्केट की किसी दुकान से खरीद के दे सकता है? है? वो कहेगा कि जी सर ये प्योर गोल्ड है, बट अप टू 22 कैरेट है, अप टू 22 कैरेट है। यही चीज यहां है, यही चीज यहां है कि दिस इज द लिमिटेशन दैट %100% assurance is neither possible nor desirable तो समझना इसको कि क्या ये तुम्हारी कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल है? क्या आपको सुन के बुरा लग रहा है कि अरे बताओ हमारी पढ़ाई लिखाई तो सब धरी की धरी रह गई
और हम 100% एश्योरेंस नहीं दे पा रहे, तो आखिर हम कर क्या रहे? अगर अपन 100% एश्योरेंस नहीं दे पा रहे तो हम कर क्या रहे? बुरा लग रहा है सुन के? है? नहीं नहीं, बुरा लगना चाहिए, तभी तो आप इसका रीजन खोजने लग चलेंगे कि आखिर क्यों ऐसा है कि हम सब कुछ करके ओवरऑल ऑडिट प्लान बना के भी ओपिनियन जो दे रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि नो, एकदम आंख मूंद के भरोसा मत कर देना। This concept mean it's a warning to the user. What kind of a warning this is? क्या वार्निंग है? A user should not assume. What he should not assume? Each and every fraud or error has been detected by the auditor. He should not assume this. That the auditor's assurance is a guarantee. हेलो, नमस्कार, कहाँ है? बस 50,000 भेज दे दूंगा, भेज दे। और तू भेज देना, भेज दे, हो जाएगा, भेज दे, मेरा नंबर देके भेज दे।
that is saying that in this inherent limitation of audit, everybody says that the auditor has to give an opinion. Now listen, a very important question which also comes up for comment. Whether auditor gives an opinion or a certificate. So he gives an opinion. He does not certify you anything. It's not a certificate. सर्टिफिकेट का मतलब होता है मैं सत्यापित कर रहा हूं कि ये जो लिखा है सही है, वो सत्यापित नहीं करता. He gives you only an opinion which is his opinion, which is his set of opinion. His set of opinion means what? इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना, अभी एक्सप्लेन करते हैं. पहली बात तो ये जान लो, वो जो रिपोर्ट देता है ना वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्या है? ओपिनियन है. उसकी रिपोर्ट, द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर शुड नॉट बी एज्यूम्ड एज ए सर्टिफिकेट. दैट्स राइट. ओके. नाउ दिस इज ए वार्निंग टू द यूजर, not to the management, not to the auditor, because auditor knows what his limitations are. Management is also apprised about these limitations at the stage of acceptance of the appointment by the auditor. जब कोई क्लाइंट आपसे कहता है साहब हमारी ऑडिट कर दो, तो आप बता देते हैं, लिख के बताते हैं. उसको अपन लेटर ऑफ एंगेजमेंट बोलते हैं. 3rd चैप्टर में उसका एक ऐसे भी है कि देखो भाई मैं कर तो दूंगा ऑडिट, लेकिन आप ये मत मान लेना कि मैं सारी गलतियां निकाल के बाहर लेके आऊंगा. ये मैं पहले बता दूं, हमारे ऑडिट के प्रोसेस में कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आप ये एग्री करो. अदरवाइज जब रिपोर्ट दूंगा तो आप ये मत कह देना साहब वो 1 रुपए वाली गलती तो आपने निकाली नहीं, वो 2 रुपए की चाय का वाउचर छूटा रह गया था और आपने कहीं रिपोर्ट में लिखा ही नहीं कि छूटा रह गया था. तो वो पहले बता देता. तो ऑडिटर को पता है क्या कमी है, मैनेजमेंट को पता है क्या कमी है. ठीक है. ये तो हम बाकी दुनिया के लिए कहते हैं कि देखो बाकी दुनिया तुम भी जान लो कि हमारे इस प्रोसेस में कुछ इनबिल्ट कमियां हैं. ये एक ह्यूमन प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है. आप एक मैकेनिकल प्रोसेस बना सकते हैं जो कि क्लेम कर सकते हैं 100% करेक्ट है. एक कैलकुलेटर आप बनाते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस है ना, उसको आप क्लेम कर सकते हैं इससे जो कैलकुलेशन होके आया है सही है, लेकिन उसमें भी एक कमी है. अगर आपने बटन गलत दबाई तो रिजल्ट भी गलत आ रहा है. तो जहां ही ह्यूमन इंटरवेंशन होता है वहां गलतियों की संभावना बढ़ जाती है. वो अंग्रेजी में कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन. मनुष्य गलतियों का पुतला है, क्योंकि मनुष्य स्वयं किसी की गलतियों का नतीजा है. हाँ बस रहे. So this is the warning to the user. Now listen carefully. Listen carefully. आपको मटेरियलिटी पढ़ाई गई और मटेरियलिटी को ऐसे बताया गया, इट इज एन इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर. वो बड़ी सूचना होती है, वो गंभीर सूचना होती है, उसको अपन मटेरियलिटी बोलते हैं कि जिसपे मेरा फैसला टिका हुआ है, उसको मटेरियलिटी बोलते हैं. अब यूजर के फैसले किस चीज पर टिके हो रहे हैं? अकाउंट्स पे. और उसको कहा जा रहा है हम आपको नॉर्मल अकाउंट नहीं दे रहे, हम आपको ऑडिटेड अकाउंट दे रहे हैं, 3rd पार्टी से कराया हुआ अकाउंट दे रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट है उसका कराया हुआ अकाउंट दे रहे हैं, उसका अपना नॉलेज एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने सर्टिफाई किया हुआ आईसीआई ने उससे कराया हुआ अकाउंट दे रहे हैं. तो यूजर सोचेगा फिर तो एकदम से
पीएनएल को गंगा में डुबो के निकाल रहे, बिल्कुल प्योर ही होना चाहिए। सोचना बनता है कि फिर तो यार एकदम प्योर होना चाहिए। एक तो इनके यहां 50 का स्टाफ, दूसरे ही ऑडिट करा रहे आउटसाइडर से जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है यहां, तो फिर तो वो सही को सही और गलत को गलत ही बोलेगा, और फिर तो वो 100% सही ओपिनियन होना चाहिए। इसका मतलब मैं इस पे कंप्लीट भरोसा कर लूं आंख मूंद के? यही इसको बोला जाता है कि सर आप भरोसा करिए, लेकिन रिस्क भी आपका ही है। यू शुड कीप योर फेथ ऑन ऑडिटेड अकाउंट विद ए पिंच ऑफ साल्ट, एंड दिस इज द पिंच ऑफ साल्ट। ये है चुटकी भर नमक कि देखो साहब, ये मत मान लेना कि एक एक रुपया पकड़ के आपके सामने डाल दिया गया है, ये मत मान लेना। और दूसरी बात ये भी मत मान लेना कि ये ओपिनियन कोई वेद वचन है जो कि सत्य वचन है। ये वेद वचन नहीं है, ये मानव वचन है। तो वेद वचन सत्य हो सकता है, मानव वचन सत्य होगा या नहीं होगा कोई पक्का नहीं है, क्योंकि मानव वचन पे 100% भरोसा करने वाला मर भी सकता है। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, तो आपस की पारिवारिक लड़ाई थी। तो पहले आपस में एक दूसरे को बर्तन फेंक के मारते रहे। जब बर्तन खत्म हो गए तो बोले चलो गली में लड़ते हैं। ठीक है भाई, अरे तू चाय ले गया, या खिलवाड़ करने में तुला हुआ है। तो महाभारत की लड़ाई चल रही थी और वो दोनों तरफ से तीर वीर मारे जा रहे थे। तो उधर वो पहले तो भीष्म ने परेशान किया हुआ था पांडवों को, पांडवों को जल्दी थी यार, लड़ाई तो अल्टीमेटली हमने जीतनी है, लेकिन ये बताओ डिले कर रहे हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिलवाए जा रहे हैं। पहले उन्होंने भीष्म को रुकाया, उनको कहा आप साइड में बैठो, आपकी उम्र नहीं है, साइड पे गद्दा लगा देते हैं, आप यहां बैठ के लड़ाई देखो। तो उनको लिटा दिया बिस्तर पे। अब वो सामने द्रोणाचार्य आ गया, अब वो इनका भी गुरु, और गुरु तो गुरु होता है, अनलेस ही गुरु घंटाल। तो वो सामने गुरु और इधर चेला लोग, हाँ लिया, सामने गुरु इधर चेला लोग। अब गुरु तो गुरु, अब वो बेचारे परेशान हो गए। तो अब उसका तरीका ढूंढा जाने लगा कि भाई भीष्म को तो ऐसे लड़काया, वो सामने किसी लेडी को लगा दिया और फिर पीछे से मारा था शायद उनको, नहीं वट एवर नेम, बट ही और शी वॉज अपीयरिंग लाइक ए लेडी। हाँ, और ही मत कहिएगा कभी ऐसे लोगों को, ट्रांसजेंडर को ही शब्द मत यूज कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में केस हो गया, एक ट्रांसजेंडर वो शिवाजी ने इलेक्शन, मैं अब खुद ही राइट कर रहा हूं, शिवाजी ने इलेक्शन वो कैंडिडेट है वहां पे, बहुत खूबसूरत है। तो वो लड़ रही थी और किसी ने उसको ही कह दिया किसी टीवी डिबेट में, भाई साहब केस हो गया। कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर दिया कि यस आपने ही शब्द का यूज गलत किया है। माय गॉड, अब देखो बेचारे का भविष्य खराब होगा। तो वो सपोजिटली किसी लेडी को सामने रख के पीछे से ठोक दिया उनको। तो इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, औरतों से बहुत संभल के रहना। बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या तोड़वा दी इन्होंने। अब वो मैं बोलने पे आ रहा था, ओपिनियन पे आ रहा था कि मनुष्य ने जो बोला उस पर 100% भरोसा किया तो मर गए। अब वो द्रोणाचार्य ने परेशान किया हुआ था, तो अर्जुन ने बोला उनको, कृष्ण को, कि अब ऐसा है तुम कुछ तरीका बताओ, है तुम तो शांति से यार लड़वाए जा रहे हो, मरवाए जा रहे हो, तुम्हारे सामने हमारे बंदे कट रहे हो, तुम आराम से जो है घोड़े की ताल लिए चले जा रहे हो, कुछ कर भाई। तो उसने कहा देख गुरु ऐसा है, 2:30 बजे
अरे जय श्री राम, ठीक है, 2:30 बजे, 2:30 बजे बात करूंगा, आई एम इन क्लास, ठीक है, ठीक, आई विल कम, ओके आई विल कम। तो क्या हुआ? वो तो कर, भाई साहब टॉपर में ऑडिट के 2 टीचर हैं, आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। तो छोड़िए वो कहानी, यहीं आ जाइए। तो अब वो कृष्ण ने कहा देखो ऐसा है कि ये युधिष्ठिर है और उसका बेटा है वो अश्वत्थामा, ये जाके बोल दे कि अश्वत्थामा मर गया तो बेटे गम में डूब जाएगा। उन्होंने कहा यार मैं कैसे बोलूंगा? उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि वो अपनी सेना में ना एक हाथी भी है इसी नाम का, ये वो जमाना था जब आदमी और हाथियों के नाम एक जैसे होते थे, ये वो जमाना था। तो उन्होंने कहा वो ये है ना अपना गफूर भीम भाई, तू ऐसा कर, तू कल इसको टपका हाथी को, ठीक है, मार लेगा ना। इन्होंने कहा बहुत मारने को तो बोलो, मैं किसी को भी मार दूं, मेरा तो काम ही यही है। तो उन्होंने कहा कल तू हाथी को मार और भाई तू जाके वह सामने बोलेगा अश्वत्थामा मरा। कहा लेकिन वो तो हाथी मरेगा। कहा तू ये बोल तो सही, मैं संभाल लूंगा ना। उसने कहा गुरु कृष्णा लेकिन ये तो झूठ होगा यार। उन्होंने कहा झूठ होगा तो क्या प्रॉब्लम है, ये अपनी जीत से ज्यादा बड़ा है क्या झूठ? तो बोलना पड़ेगा, मामला है, बोलना पड़ेगा। उसने कृष्णा कहा यार जिंदगी भर सच बोला है, अपने लिए उधर स्वर्ग में एक सीट का रिजर्वेशन करा रखा है, जिंदगी भर सच बोला है। अब सोचता हूं ऊपर जाऊंगा, स्वर्ग में रहूंगा, अप्सराओं का डांस देखूंगा। यहां तो जमीन पे देख ही रहे हो, एक व्यक्ति को लेके आया, उसने 4 पार्टनर और हो गए। यहां तो कुछ मिला ना, अब तो वही का सहारा है। अब तुम ये झूठ बुलवा के यार वहां से भी बेदखल करवाओगे, मुझसे ना हो पाएगा। उसने कहा बे उसी के लिए कह रहा हूं, जाके बोल, उसी के लिए कह रहा हूं। कहा ना। फिर किशन ने चारों भाइयों को कहा देखो ये द्रौपदी के साथ तुम लोगों ने भी शादी कर ली, इससे इतना नाराज है कि तुम लोग को खत्म करवाना चाहता है और अकेले राज करना चाहता है। अब वो भाई बड़े इमोशनल हो गए, भैया हमारे लिए इतना कर दो। अब देखिए कभी कभी क्रेडिबिलिटी आपको कितना फंसा देती है। तो उसने कहा युधिष्ठिर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, तुम जाके बोलोगे तो भरोसा होगा, नहीं अगर ये इन चारों में से जाके किसी ने बोला ब्रेकिंग न्यूज अश्वत्थामा हाथों, तो 2004 बोलेगा भाई दूसरा चैनल लगा के कंफर्म कर ये सही है कि गलत बोल रहा है। अब वो क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी ज्यादा है, उन्होंने कहा लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अश्वत्थामा हतो और लड़ो या कुंजो, तो मतलब उधर से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आएगा। तू जा तो सही। अब वो गया, अगले दिन लड़ाई शुरू हुई, जाके उसको बोला बड़ा धकेल धुकेल के तो भेजा उसको किसी तरह, जा पहले जा नहीं रहा था, फिर भेजा उसको। अब वो गया, गुरु जी गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग, कैसे आना हुआ? एक न्यूज है गुरु जी आपके लिए। बोला क्या? अश्वत्थामा ना हतो, इतना ही सुना था इसको। फिर अच्छा उसने उधर से पूछा नरो या कुंजो, इन्हें बोला गुरु जी आई डोंट नो। तब तक उधर से शंख वंख पता नहीं क्या बज गया, आवाज दब गई और इसने यही बोला गुरु जी ने, यार अगर ये युधिष्ठिर बोल रहा है ना तो सही होगा। 2 मिनट के लिए इसने अपना धनुष रखा, उधर अबे मारना, क्या देख रहा है, मारना, मौका है, मौका है, मौका मौका मौका। और ये गाना बजा दिया, मौका मौका मौका। तो ये जो यूजर है ना, इसको भी वार्निंग है, नहीं भैया तुमको ये सोचने का अधिकार नहीं है कि सब कुछ ऑडिटर बाहर लेके आ गया। ये देखिए ये यूजर के लिए है।
तो यूजर को क्या बताया गया? अब यूजर का सवाल आएगा ना, अश्वस्थामा हतो तो नरो व कुंजो, ये यूजर का सवाल आएगा। तो यूजर को गाइड किया गया ICI इन SA200 प्रेस्क्राइब्स। अभी भी ये कंसेप्ट ही चल रहा है। Inherent limitations of audit. First limitation is time and cost. अब यहां यूजर को बता रहा है कि देखो भाई, हमने खुद अपने मेंबर्स को कुछ तरीके बताए हुए हैं। क्या तरीके बताए हुए? और दोनों के ऐसे प्रेस्क्राइब करके तरीके बताए हैं। क्या बताएं? ऑडिट सैंपलिंग और एनालिटिकल रिव्यू, दो तरीके बताए। दोनों के ऐसे हैं। क्या बताया उन्होंने? अगर किसी अकाउंट के 1 लाख वाउचर हैं तो ऑडिटर तुम सेलेक्ट करो 10,000 वाउचर चेक करो। अगर ये 10,000 सही है तो मान लो कि बाकी 90,000 भी सही है। अगर ये 10,000 गलत हैं तो मान लो कि बाकी 90,000 भी गलत है। एनालिटिकल रिव्यू रेशियो एनालिसिस की टेक्निक है। आपने कुछ रेशियो एनालिसिस के फार्मूले शायद पढ़े होंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कुछ होता है, टर्नओवर का रेशियो कुछ होता है, नेट प्रॉफिट का रेशियो कुछ होता है। इन रेशियोज के आधार पे वो ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। असेट पिछली साल 50 लाख के थे, 5 लाख का डिप्रिसिएशन लगा। इस साल का जो एसेट आया है 45 लाख का दिखाई दे रहा है। तो पिछले साल कॉलम आ रहा है 50 लाख का, इस साल कॉलम आ रहा है 45 लाख का। इसका मतलब यू हैव ए राइट टू एज्यूम दैट नो न्यू असेट वाज परचेज्ड एंड नो एग्जिस्टिंग असेट वाज सोल्ड। लेकिन क्या ये 100% सही है? आपको तो अंदर जाना चाहिए, चेक करना चाहिए। लेकिन आईसीआई क्या प्रिस्क्राइब करना चाहता है कि देखो, कंपनी कानून के मुताबिक तुम 1 साल में 20 ऑडिट कर सकते हो। इन 20 ऑडिट में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी काउंटिंग शामिल ही नहीं होगी। उनकी संख्या बढ़ा के 30 तक जा सकती है। 1 साल में तुम कुछ इनकम टैक्स की ऑडिट भी कर सकते हो जो ये कंपनी ऑडिट से अलग होगी। 60 ऑडिट की लिमिट उसकी ले जाके छोड़ी है। तो मतलब अगर आप बहुत एक अच्छे नेटवर्क वाले सीए हैं तो आपको अकेले करीब करीब 80-90 ऑडिट सालाना करने का मौका मिल सकता है। इसके सिवा आपके और प्रोफेशनल असाइनमेंट है, अकाउंटिंग है,
कंसल्टेंसी है, दुनिया भर के काम है। तो आप खुद मानिए कि 12 महीने का टाइम है और ऑन एन एवरेज एक बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन रखता हूं, ऑन द बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, 48 ऑडिट हैं आपके पास। एक महीने में 4 हो गई, एक हफ्ते में 1 हो गई। 365 दिन की अकाउंटिंग जो आपका क्लाइंट कर रहा है, उसकी ऑडिट के लिए एवरेज टाइम आपको कितना मिला? 1 हफ्ते का। आप खुद सोचिए, क्या आप एक एक ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं? जो आइडिया आईसीआई ने दिया वो यही दिया कि क्या हमारे ऑडिटर से आप एक एक ट्रांजैक्शन चेक कराना चाहते हैं? उन्होंने कहा हां जी हम कराना चाहते हैं। बोले साहब ठीक है, वो आपकी ऑडिट करेगा 365 दिन, आप उसके पूरे साल के दफ्तर का खर्चा दे दीजिए ऑडिट फीस के रूप, वो आपके पास बैठा रहेगा दिन भर, नहीं परेशानी उसको कोई। उतना आप दे नहीं पाओगे, उतने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर हम बता रहे ना, उसको सैंपलिंग से ऑडिट करने दो, एनालिटिकल रिव्यू से अपने एजम्पशंस बनाने दो। तो अगर वो सैंपलिंग से ऑडिट करेगा तो यूजर कैसे एज्यूम कर सकता है कि एक एक गलती को पकड़ के ला दिया गया? एज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्टेड मेथड है, प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि अगर ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दिया तो सब कुछ सही है। हाँ, आपको एज्यूम कर लीजिए, बट एजम्पशन इज एन एजम्पशन, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए सबके। करंट केस बताता हूं आपको। एक कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, बड़ा अखबार में चल रहा है आजकल, IL&FS। अभी पता चला कि वो एकदम से डूब गई। अरे कोई कंपनी ऐसे एकदम से डूब सकती है क्या? डूब भी सकती है, नो डाउट, डूब भी सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां डूबी है। कल तक एकदम बहुत बड़ा नाम था उनका, और एक हफ्ते के बाद पता चला वो मार्केट से गायब। IL&FS ऐसी डूबी है कि केंद्रीय सरकार को परेशानी होगी, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें गए। और IL&FS का केस अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। जितना मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा है, मैं एज्यूम कर सकता हूं कि इसका केस भी वैसा ही होने वाला है जैसा वो ऑयल टैंकर वाला केस था। मतलब इस कंपनी ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो RBI के पास जाकर के बारोइंग करने की कोशिश करे। ये 3.6 लाख करोड़ वाला जो मामला चल रहा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनको लेटर लिखा अंडर सेक्शन 7 ऑफ द RBI एक्ट, ये करीब करीब वही मामला है। अभी रिपोर्ट आनी बाकी, लेकिन होगा यही। तो IL&FS के ऑडिटर ने पिछले साल तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि ये बिल्कुल एकदम डूबने की कगार पे है। अभी ऐसा क्या हो गया? इस साल जो उनका ऑडिटर आया, उसने कहा भाई साहब मैं एक चीज पे समझौता नहीं करूंगा, आपने जो कर्जे दे रखे उनका डेट सर्विस कवरेज रेशियो मुझे दिखा दीजिए कि यू आर इन पोजीशन टू रीपे योर लायबिलिटी एज एंड व्हेन दे अराइज। और जब मैनेजमेंट ने हिला हवाली की तो उसने अपनी कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट में लिख के दे दिया। उसके बाद मैनेजमेंट को जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो क्या पिछले साल के ऑडिटर को हम पकड़ के फांसी पर लटका दें? नहीं। उसने वो क्राइटेरिया यूज नहीं किया तो उसको फांसी पर लटका दें? नहीं, क्योंकि हर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। हां, ये ओपिनियन थारोली रॉन्ग नहीं होना चाहिए। थारोली रॉन्ग हुआ तब आपके ऊपर केस हो सकता है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। भारत में बहुत से बैंक घोटाले हुए। RBI ने चिट्ठी लिखी ICI को कि भाई बताइए, आपके जो ऑडिटर जाते हैं साल में एक बार ऑडिट करने, उनमें से तो किसी ने भी नहीं कहा था कि ये घोटाला हो रहा है, वो घोटाला हो रहा है। बाद में पता चला कि बैंक में इतना घोटाला हो गया। ICI ने भी बड़ा बढ़िया जवाब दिया कि सर ऐसा है, एक बैंक में डेली कम से कम 20,000 ट्रांजैक्शन होते हैं, पैसा जमा करने के निकालने के 20-25,000 ट्रांजैक्शन के आसपास एक ब्रांच में हो रहा है। 365 दिन में कम से कम 340 दिन आपका बैंक खुलता है। बैंक और रेलवे दो ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे कम छुट्टी होती है। 340 दिन आपका बैंक खुलता है, डेली के 20 से 25,000 ट्रांजैक्शन। हमारे मेंबर को आप कितना टाइम देते हैं ऑडिट करने के लिए? जो इंस्टीट्यूटरी ऑडिट करने जाता है 4 से 5 दिन। एक हफ्ता लगा दे तो आपके यहाँ फोन आ जाता है, सर क्या कर रहे हो, देर क्यों हो रही? और 10 दिन अगर उसने लगा दिया तो आप उसको अगली ऑडिट नहीं दोगे, ये आप उसको वार्निंग दे देते हैं। मतलब हद से हद 10 दिन में उसको सबमिट कर देनी रिपोर्ट, लिख के, बना के।
कैसे आप उम्मीद करते? सारे घोटाले खोल देगा। किसी मेंबर खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत मत कीजिएगा, आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। तो आपको अपना ओपिनियन देने का अधिकार है, क्योंकि ये ओपिनियन कुछ लिमिटेशन से गवर्न होता है। Therefore, may be selective and the user should recognize this. चलो, यूजर शुड रिकॉग्नाइज दिस। अब दूसरी परेशानी क्या है? व्हाट इज द सेकेंड लिमिटेशन बिफोर द ऑडिटर? द सेकेंड लिमिटेशन इज वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो देखो, सीरीज आईसीआई बड़े ढंग से शुरू कर रहा है। सबसे पहले उसने मेंबर को भी बताया और यूजर को भी बताया कि देखो भाई, ऐसा कमी किस बात की है। हमारे प्रोसेस की पहली कमी तो यही है कि ऑडिटर आपके घर पे 24 घंटे की सेवा नहीं दे सकता, 365 दिन की सेवा नहीं दे सकता। आप इस चीज को पहले मान लीजिए। उसके बाद हम आपको दूसरी बात बताते हैं। ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। मैंने एक लेक्चर में आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हल्का सा आइडिया दिया था, that this internal control system is a plan of the organization to achieve what? Objectives of the entity, objective of the organization. And there are two objectives, main objectives of the organization: to maximize profit, to maximize wealth. और मैंने आपको उसमें बताया था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है। जो मूल बात वहां पे बताई थी आपको वो ये थी कि रिटन अनरिटन, स्पोकन अनस्पोकन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हर जगह होता है। आपके घर से शुरू करता हूं। आपके घर में भी एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद्यमान है। आप अपने घर को देखिए, आपके घर में क्या शुरू हो जाता है? ये दादाजी का कमरा है, ये पापा जी का है, ये उनका है, ये मेरा है, ये कॉमन लॉबी है, ये ड्राइंग रूम है, ये फ्रंट गार्डन है, ये किचन गार्डन है। गाड़ी यहां पे खड़ी करनी है, आपकी अपनी गाड़ी, आपका अपना घर, फिर भी उसके लिए एक मार्क प्लेस होता है कि गाड़ी यहां पे खड़ी करनी है, अदरवाइज दरवाजे का स्पेस घिर जाएगा। मेहमानों के मामले में आपको मालूम है कि कौन से मेहमान को आप सिर्फ दरवाजे पे विदा कर देते हैं, किसको आप ड्राइंग रूम तक ले आ सकते हैं, किसको आप बेडरूम तक ले जा सकते हैं, किसको आप अपने किचन में भी आने की इजाजत दे सकते हैं। ये इसका एक अनस्पोकन रूल है। फाइनेंसेस पे आ जाइए। मैं नहीं कहता कि हर घर में एकदम पूरा भारत सरकार की तरफ बजट बनता है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में आइडिया रहता है कि महीने में अराउंड इतने पैसे आ जाएंगे, तो इसको इतना बैंक में डाल देना, इतना डिपॉजिट, इतना ऐसे ये खर्च करने का, ये फीस और ये वो एक्सपेंडिचर, एक आइडिया हर घर में रहता है। आपको घर से कितने बजे निकलना है, कितने बजे तक मैक्सिमम घर में वापस आ जाना, ऐसा कोई संविधान नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी एक अनरिटन रूल, जिसको आप कह सकते हैं घर का कल्चर, घर का ट्रेडिशन, हर घर का अलग अलग हो सकता है।
आपके घर का कुछ और हो सकता है, आपके पड़ोसी के घर का कुछ और हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। तो अगर इसको बिजनेस में हम लेकर के आए, सो एवरी दुकान और एवरी मल्टीनेशनल कंपनी मस्ट हैव एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लाला जी की दुकान है छोटी सी, उनको भी मालूम है कि उनको खरीदना कहां से है माल, उनको भी मालूम है। उनको मालूम है कि जो दुकान पे ग्राहक आने उनसे कैश सिस्टम में डीलिंग करनी है या इंटरनेट वाले सिस्टम में डीलिंग करनी है। देखिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, छोटी सी दुकान पे ज्यादातर डीलिंग कैश में होती है। अभी नोटबंदी हुई थी, इवन सब्जी के रेहड़ी वालों पे भी आपको पेटीएम के वो इक्विपमेंट रखे हुए मिल गए थे, कुछ क्या तो अभी भी मिलते हैं। क्या किया कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेंज कर दिया। नाई की दुकान पे पेटीएम वाला दिखने लगा। क्या इसी तेल मसाले और आटा नमक दाल चावल में तो दुनिया तमाम है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं बंद कर दे, कोई बात नहीं, बंद कर दे। मेरी विश्वसनीयता कम से कम इतनी तो है कि अगर ये बंद भी रहेगा तो बाहर कोई उल्टा सीधा नहीं सोचेगा, इतनी विश्वसनीयता तो है। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई बाहर से अंदर आना चाहेगा। एनीवे, वैसे उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बंद होने का, क्योंकि आपने शायद साउंड के बारे में नहीं पढ़ा। फिजिक्स में एक साउंड का चैप्टर होता है जिसमें साउंड वेव्स के बारे में बताते हैं। आई नो a bit about it because I did my BSc and then I did my CA. हाँ, तो इस पे आइएगा जरा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। लाला जी को भी पता है कि किसको माल बेचना है, कैश में बेचना है। अच्छा, उस लाला जी की दुकान से कुछ लोग उधार भी ले जाते हैं। आप मोहल्ले के बनिए के बारे में सोचिए, वो सबको उधार नहीं देता, किसको किस लिमिट तक देना है ये भी उसको पता है। इसी को आप बढ़ा के एमएनसी पे ले आइए। एमएनसी में जो ये चीजें होती हैं इसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट। वहां बड़े बड़े शब्द आ जाते हैं, लेकिन मूल में वही है कि आपको अपने प्रबंधन को ढंग से संचालित करने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी उन कंपनियों के कभी इतिहास को पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा कि बड़ी से बड़ी कंपनियां फेल की होती हैं, कहीं ना कहीं उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल होता है, तब फेल होती है। फ्रॉड होता किस वजह से है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई कमी होती है तो फ्रॉड होता है। हम ऐसे 315 पे आएंगे, वहां पहली लाइन होती है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? टू प्रिवेंट occurrence of fraud and error, to detect if fraud and error have occurred। दो ही मूल उद्देश्य है इसके। लेकिन हम यहां पे जो पढ़ रहे हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हुआ तो क्या होगा? तो क्या करता है ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? परचेज को कैसे करना है बताता है, सेल को कैसे करना है बताता है, लोगों का रिक्रूटमेंट कैसे करना है बताता है, लोगों की अटेंडेंस कैसे लगानी है बताता है। मतलब आपको क्या क्या करना है ये सब यहां पे है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, और कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। और यहां से क्या निकलता है? पेपर वर्क। और इसी पेपर वर्क को टेक्निकल वर्ड में आप क्या कहते हैं? ऑडिट एविडेंस। फिर उसी पहले एग्जाम्पल पे लौटूंगा। आपके यहां परचेज हो रहा है और आपको बताया था, वो एग्जाम्पल उस दिन बड़ी जनरल लैंग्वेज में बताया था कि साहब हमारे यहां परचेज कैसे होता है। प्रोडक्शन से एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसको अपन बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट, फिर वो आती है परचेज डिपार्टमेंट में।
वहां से बनता है ऑर्डर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परचेज ऑर्डर। वो ऑर्डर जाता है किसी सप्लायर के पास, सप्लायर उसको भेजता है, यहां सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक होती है, फिर परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी को सप्लाइड क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है कि जितना हमने परचेज के लिए भेजा था उतना ही आपने सप्लाई किया कि नहीं किया है। उसके बाद उसको कहां रखा जाता है, स्टोर में। उसके बाद फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है, जहां वो क्वांटिटी वेरीफाइड पाता है, किसके माध्यम से, स्टोर वाले के माध्यम से। रेट वो वेरीफाई करता है कि जिस रेट पे आना चाहिए था उस रेट पे आया कि नहीं, क्योंकि स्टोर वाला क्वांटिटी तो वेरीफाई कर लेगा, रेट नहीं वेरीफाई करेगा। रेट परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट वहां वेरीफाई करेगा। जब हर तरह से संतुष्टि हो जाएगी तब उसका पेमेंट होगा। कितने दिनों में पेमेंट होगा, जो पहले से एग्रीड होगा उतने दिनों में पेमेंट होगा। ये तो लिखा हुआ है। इसका मतलब जब एविडेंस जनरेट होगा तो भी ऐसे ही होगा। ऑडिटर जब परचेज का वेरिफिकेशन करने की कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले कहां जाएगा कि साहब परचेज ऑर्डर यहां से बना, फिर वो यहां जाएगा कि सप्लाई यहां से हुआ, फिर वो यहां देखेगा क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आपको ऐसे 200 में बताया था कि जो जो इंटरनल कंट्रोल के स्टेप्स लिखे हैं वो यहां पे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो यहां पे पूरे हो रहे हैं तो कागज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो कागज में जनरेट हो या कंप्यूटर में जनरेट हो, दोनों जगहों पे जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये जनरेट हुआ तो मैं भरोसा कर सकता हूं कि ऑडिट एविडेंस ठीक है इस परचेज के लिए। अगर इसके लिए ठीक है तो ये ट्रांजैक्शन ठीक है। अब दूसरे ट्रांजैक्शन पे गया, जब दूसरे ट्रांजैक्शन पे गया फिर वहीं से शुरू किया, फिर यहां पे आया और फिर यहां पेपर वर्क पे आया। यही रिपीटेटिव प्रोसेस में चलाएगा। परचेज अकाउंट के जितने ट्रांजैक्शन उसने सेलेक्ट किए उन सबको देखने के लिए अगर सब में उसको ये मिल जाता है तो फिर वो क्या कहेगा, परचेज इज ट्रू एंड फेयर। फिर वो यही काम सेल पे करेगा, फिर वो यही काम सेली पे करेगा कि ट्रांजैक्शन जहां से शुरू होना है वहां पे जाएगा और जहां पे खत्म होना है वहां तक आएगा। हर स्टेप पे उसको एविडेंस चाहिए, जिसको टेक्निकली क्या कहते हैं, ऑडिट ट्रेल। अगर ये ऑडिट ट्रेल सही मिलती है उसको तो वो ये मान लेगा कि ट्रांजैक्शन भी सही है। अगर ये ऑडिट ट्रेल नहीं मिलती है उसको तो क्या मान लेगा, क्वालिफाइड एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर की तरफ जाना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा है, आपको पता है कब कब क्या करता है। लेकिन यह बताइए कि यह तो तब होगा जब उसको एविडेंस मिल रहा है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपने आप में वीक है तो क्या होगा, सिस्टम कमजोर है। जब सिस्टम कमजोर है तो क्या नतीजा निकलता है, weak ICS cannot produce क्या लिखा मैंने, weak internal control system cannot produce what is this, sufficient and appropriate audit evidence। अगर कमजोर है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तुम्हारा तो वो क्या प्रोड्यूस करने में नाकाम रहेगा। मुझे मेरी ऑडिट के लिए पर्याप्त एविडेंस नहीं मिल पाएगा और नहीं मिल पाएगा तो बताओ मैं क्या करूंगा। मेरे सामने फिर चारा क्या है। अब प्रैक्टिकल पे आना, जरा कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझो। आप गए थे ना क्लाइंट के ऑडिट करने, उसने आपको टका सा जवाब दे दिया था कि साहब वी डू नॉट मेंटेन आवर स्टॉक रजिस्टर, एंड यू वर सो सरप्राइज्ड। अरे पहला क्लाइंट दिख रहा है कि जो स्टॉक लेजर मेंटेन नहीं करता। आपने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कह रहे हैं भाई साहब कुछ नहीं होगा, मजाल है हमारे यहां से सुई भी गायब हो जाए, कुछ नहीं होगा। हम एक बड़ी पार्टनरशिप फर्म है, 4 भाई हैं, चारों ने अपनी अपनी ड्यूटी बांट रखी है, चारों के एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। हमारे यहां से आज तक एक सुई भी गायब नहीं, और आप करें स्टॉक रजिस्टर रखो, हम तो नहीं रखते।
दिस इज व्हाट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वीक, क्योंकि आप तो प्रिस्क्राइब्ड और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वहां देखना चाहते कि बड़ा तगड़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जैसा हमने पढ़ा है, और वैसा नहीं है तो आपकी नजर में तो कमजोर है। नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू। इस एग्जांपल हमने पहले भी देखा है, उन्होंने तो कह दिया ना हम नहीं करते, क्या कर लोगे? ऑडिटर बिकम्स हेल्पलेस। भाई नहीं मेंटेन किया तो आप क्या कर लोगे? एक एग्जांपल दिया था आपको, एक बिल्डर के यहाँ गया, उन्हें 4 महीने का लेबर रजिस्टर दीवार में चुनवा दिया, क्या कर लेंगे आप? बिकम्स हेल्पलेस। He can only express qualifications। अब सुनना, फिर उसी पे चलेंगे हम, यहीं पे चलना है। ये मान रहा है कि सब कुछ सही करके ऑडिटर ने दे दिया। अरे कहां से सही करके ऑडिटर देगा जब उसके पास एविडेंस ही ना मिल रहा? अब कह तो दिया उसने, वी हैव नॉट वेरीफाइड स्टॉक बिकॉज एंटिटी डज नॉट मेंटेन स्टॉक रजिस्टर, so except stock everything is correct। how can an user believe that in the absence of proper verification of stock by the auditor the given profit figure arrived at is true and fair? क्योंकि स्टॉक से तो प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड है, वो बेचारा वेरीफाई भी कर पाया और ऑडिटर भी क्या करे, वो यही तो लिख सकता है, वो एविडेंस थोड़ी बैठ के जनरेट करेगा वहां, क्योंकि जो घटनाएं होनी थी वो तो हो गई, नहीं कर सकता ना। वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। It is a weakness of client about which auditor can only by sending a letter of weakness। पढ़ा लिखा प्रोफेशन है ना, आप लिख करके कुछ कह सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। देखो उस बात को पकड़े रहना जहां से हमने शुरू किया है, यूजर शुड नॉट एज्यूम दैट ऑडिटर्स एश्योरेंस इज टेकन एज 100% एश्योरेंस। उस बात को पकड़े रहना। ये हमारे ऑडिटर्स के लिए नहीं है, ये हमारे मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये बेसिकली हमारे यूजर्स के लिए। हालांकि आप देख रहे हैं कि आपके लिए कितनी बड़ी मदद है, इंस्टीट्यूट ने कितना रिलीव कर दिया आपको, जब उसने आपको बचा लिया कि बेटा हम बोलते हैं कि तुम क्या करो, सैंपलिंग करो, और तुम सैंपलिंग करो, जम के करो। तीसरी कमी, अच्छा तो पहली बात किसके लिए थी? मैनेजमेंट के लिए भी और ऑडिटर के लिए भी और दुनिया के लिए भी, सबके लिए थी। दूसरी बात किसके लिए थी? मैनेजमेंट के लिए, एंटिटी के लिए। तीसरी बात किसके लिए है? आपके लिए। ऑडिटर्स इनक्विजिटिवनेस, देखो पहले इसको ध्यान से समझ लेना ये क्या है। इसके बाद इस इनक्विजिटिवनेस के पॉइंट पे एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट रिसेंटली आईसीआई ने डेवलप किया है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वो सीए इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल में स्पेशली आया, उसको बहुत अच्छे ढंग से डील करने वाले हैं हम आज यहाँ पे। आप कंसेप्ट समझ लीजिए ना, फिर समझिए कि आप यहाँ हैं या मैं यहाँ हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आप भी यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रांसलेटर बनेंगे, किताब पढ़ के ट्रांसलेट करेंगे
ऑडिटर्स इनक्विजिटिवनेस, ये इनक्विजिटिवनेस क्या है? प्रश्न न पूछने की क्षमता। भैया हिंदी में लिखा है, ठीक लिखा है ना? ठीक लिखा है ना भाई हिंदी वालों? हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम हिंदी मीडियम? अरे अभी सीए में भी हिंदी मीडियम में अपीयर होने का मूड है? एनीबॉडी? या एनीबॉडी हु वांट टू अपीयर थ्रू हिंदी मीडियम इन सीए एग्जामिनेशन? नहीं, हिंदी मीडियम से आए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम हिंदी मीडियम? यार फ्रैंकली टेल मी। हाँ या दोनों हाथ, आधा हाथ, टेढ़ा हाथ, सीधा हाथ, 4 ही 5 है। अरे जिनका फाउंडेशन में भी हिंदी मीडियम था ये वो लोग हैं क्या? हाँ, मतलब 12वीं क्लास हिंदी माध्यम से करी, बाकी सारे अंग्रेजी माध्यम से करके आए 12वीं क्लास। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर 12th क्लास थ्रू इंग्लिश मीडियम एग्जामिनेशन? फिर तो चलो मेरे लिए अच्छा है, फिर मेरे लिए अच्छा है। नहीं, मैं क्लासेस को प्रोफेशनली कंडक्ट करना ही चाहता हूं कि बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट हो। मतलब मेरा ये इरादा नहीं रहता कि मैं आपको एक 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पढ़ा के निकल जाऊं। मेरा इरादा रहता है थोड़ा ओवरऑल डेवलपमेंट हो तो अच्छा रहता है। प्रश्न ना पूछने की क्षमता, देखिए ये बड़ा कंसेप्ट है क्योंकि इसके आधार पर एक और डेवलप हुआ, तो इसको बहुत लाइटली लेके चलूंगा, मैं बहुत ग्राउंड से लेके चलूंगा। देखिए कभी कभी आपको अपनी लाइफ में परेशान नहीं करता है प्रश्न ना पूछ पाने की क्षमता? आपको कभी कभी अपनी लाइफ में परेशान नहीं करता? मैं जानता हूं यहां बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सी बातों को मन में दबा के रखते हैं, बहुत सी बातों को मन में एकदम दबा के रखते हैं, है कि नहीं? ऐसे 6-8 महीने साथ में पढ़ते हुए हो जाएंगे, नाम भी नहीं पूछ पाते, नाम भी नहीं पूछ पाते। बताइए, अरे कितना तो फ्रैंक होना चाहिए। ये बेसिक कमजोरी है भाई, नाम भी नहीं पूछ पाते। पता पूछ लेना तो समझिए बहुत बड़ा पहाड़ है। डरते भी बहुत पूछ पाते तुम्हारे भाई कितने हैं। अगर 2-3 की संख्या हो गई तो फिर तो समझो सवाल अब पूछना ही नहीं है। प्रश्न न पूछ पाने की ऑडिटर की क्षमता बड़ी व्यापक है, क्योंकि देखिए आपसे सवाल ही पूछा गया था जब आपके हाथ में बैलेंस शीट दी गई थी। सर प्लीज टेल अस वेदर दिस बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स और नॉट। उनको तो डर नहीं लगा, उन्होंने तो आपसे सवाल पूछ दिया। दे पोज्ड क्वेश्चंस और उसके बाद से आपको यहां ले आके खड़ा कर दिया कि साहब ये हमारे सारे एविडेंसेस हैं, क्योंकि उनको पता है यू हैव ए लीगल राइट। अब इसमें से कितने ऑडिट एविडेंसेस को देखना है ये आप डिसाइड करते हैं, बिकॉज SA 200 इज वेरी क्लियर अबाउट इट। ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस which he considers relevant for the purpose of his audit, यही कहा गया। तो it is your duty to obtain sufficient and appropriate audit evidence। और ये आपको पहले भी बताया था कि एविडेंस 2 फॉर्मेट में होता है, लिखित और मौखिक। अब सारा खेल आपके हाथ में आ गया।
अब देखिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती चली जा रही है, सारा खेल आपके हाथ में आ गया। एक वाउचर आपने देखा परचेज का, ऐसे देख रहे हैं आप, अच्छा तो अब परचेज का वाउचर जब आप देख रहे हैं, परचेज इनवॉइस, यहां नेम, डेट, जीएसटीएन वटेवर, और उसके बाद से सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, and then total, and then GST, CGST, SGST, IGST, whatever लगा लोगे, यहाँ पे किया हुआ है, फिर यहाँ पे साइन, फिर यहाँ पे साइन, ये किया हुआ। अब आप देख रहे हैं इसको, देखिए ये जो है ना कागज, यही आपके सवालों को जन्म देता है। सवाल ये उठता है, आप कितने सवाल पूछेंगे। माल परचेज हुआ है, एक ऑडिटर, देखिए अप्रोच की बात है, ये प्रश्न न पूछ पाने की आपकी क्षमता, ये व्यक्तिगत अटैक है आपके ऊपर, इसका किसी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। इट इज रिलेटेड विद साइकोलॉजी ऑफ ऑडिटर, इसका किसी सिद्धांत से कुछ नहीं लेना देना, ये आपके दिमाग से रिश्ता रखता है। देखिए एक परचेज इनवॉइस यहां पे पड़ा हुआ है, एक ऑडिटर आया, 8,000 परचेज किया था, यस, टिक 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 टिक, और ये बिल्कुल सही है। उसने इस कागज को देख करके मान लिया कि हां आपने परचेज की थी, ठीक है। दूसरा आया, ये परचेज हुआ था, ठीक है बेटा एक काम करो, ये परचेज लेजर है ना यार, एक काम करो यार, इसको परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर करो तो जरा। उसने परचेज ऑर्डर लिया और परचेज इनवॉइस ली, दोनों को कंपेयर किया। अब वो क्या कंपेयर कर रहा होगा, जितना आइटम क्वांटिटी में था उतना ही इसमें लिखा है कि नहीं, जिस रेट पे ऑर्डर था उस रेट पे माल आया कि नहीं, और जब मिल गया दोनों तो उसने अब मान लो सही है। तीसरा आया, तीसरा ऑडिटर आया, और जो हाँ ये तो ठीक है परचेज इनवॉइस, लेकिन भाई साहब इसके पहले आपने परचेज ऑर्डर भी तो भेजा होगा, उसको भी तो दीजिए। ये साहब आ गया, बेटा चेक करो इसको जरा, हो गया साहब, अरे अभी कहाँ हुआ यार, ये तो मतलब आप ही की साइड हुआ ना, परचेज ऑर्डर भी आप ही की साइड है और परचेज इनवॉइस भी आप ही की साइड है। अब एक काम कीजिए, वो स्टोर लेजर जरा ले आइए तो जरा मैं उससे कंपेयर करूंगा। ओ भाई साहब स्टोर लेजर बिल्कुल चाहिए, ये आपके स्टोर में तो गया होगा, ये तो ये है ना कि आपने परचेज ऑर्डर किया और परचेज इनवॉइस उधर से बन के आ गया, मैं ये भी तो देखूं कितना माल भी आया कि नहीं आया। अब वो स्टॉक लेजर भी मंगा रहा है, तीनों में आया, और जब तीनों मिल गया तो बोला बेटा अब कर लो सही है। चौथा ऑडिटर आया, उसने कहा था ये परचेज इनवॉइस ठीक है, परचेज ऑर्डर ले आइए, स्टॉक रजिस्टर यहाँ लिखवाइए, हाँ ठीक है बेटा मिला लो, मिला दिया सर, अरे नहीं सही नहीं सही नहीं सही नहीं। अब क्या हो गया, ऐसा है कि सप्लायर को चिट्ठी भेजिए और उनसे लिखवा के मंगवाइए कि माल उन्होंने आपको सप्लाई किया था, इस डेट को किया था, और एक चीज और मंगवा लीजिएगा। अब क्या मंगवा लें साहब, आपने अपने लेजर में उनका अकाउंट मेंटेन किया है, जी साहब, तो उन्होंने अपने लेजर में आपका अकाउंट मेंटेन किया होगा साहब, साहब उसकी फोटोकॉपी मंगवा दीजिएगा। सर इतना मंगवाना पड़ेगा जी, मैं देखना चाहता हूं ये फर्जी एंट्री तो नहीं है। उनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो आपका अकाउंट मौजूद है उसकी कॉपी मंगवाइए, आपका लेजर तो मेरे पास ही है। लो जी, डाल दिया, उनका मंगवाया, जब उनके में मिल गया, यही काम आप बैंक रिकंसिलिएशन में करते हैं, जब उनके में मिल गया तब बोला हाँ बेटा अब लगा दो सही है। पांचवा आया, उन्होंने कहा जी परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, ये ऑर्डर उनसे लिखवा के मंगवाया आपने, उनकी फोटोकॉपी मंगवाई, वो तो ठीक है, पेमेंट कब किया आपने, जी सर 10 दिन के बाद किया। बैंक स्टेटमेंट मंगवाइए, मैं देखूंगा कि ये उसी के बैंक में गया है कि नहीं गया है।
अबे भाई इतना बिल्कुल बस मैं तो इतना देखू वही है। और रेलवे में फर्जी एंट्री भी तो हो सकती है, रेलवे में फर्जी एंट्री भी तो हो सकती है। मैं आपको अभी अभी रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूं। बेटा सुन तो ले, तू अभी गमले से पूरा उग जा, सुन ले। वरना कंफ्यूजन रह जाता है। एक छोटा बच्चा था, उसने अपनी मम्मी से पूछा कि चलो छोड़ो जाने दो। तो मैं कहना है ज्यादा, मुझे दीपावली में लोगों को कुछ गिफ्ट देने थे, तो मैं जनरली स्टेट इंपोरियम से खरीदता हूँ। तो एक स्टेट इंपोरियम से मुझे पश्मीना की शॉल लेनी थी, तो मैंने उसके मालिक को फ़ोन किया, कहा कि यार मैं जा रहा हूँ तुम्हारे उसमें एम्पोरियम में, और तुम आ जाओ थोड़ी देर में, 1 घंटे में पहुँचूँगा, तो मैं कुछ सेलेक्ट करूँगा आइटम। उसने कहा सर मैं दिल्ली से बाहर हूँ और आप चले जाइए, वहाँ पे आपकी पूरी जो भी आपको आइटम चाहिए होगा आप ले लीजिएगा, अपन बाद में देख लेंगे। मैं गया वहाँ से 4-5 उठा के ले आया। तो जो लड़का था उसने एक कच्ची रसीद मेरे को दे दी, कहा सर ये रेट है, बाकी आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो वो 2-3 दिन के बाद आया होगा, तो उसने लड़कों से पूछा होगा कहाँ वो साहब आए थे, क्या ले गए, कैसे ले गए। तो मतलब ये कि उसने रेट तो बहुत ही कम कर दिया, कॉस्ट प्राइस पे दिखा दिया कि साहब ये आया हुआ है, अब आप जो चाहें कर दें। मैंने कहा ठीक है बताओ, का इतना कर दीजिए। मैं कहती डन, बढ़िया। और जिनको गिफ्ट दिया उनको पता था बाप रे इतना महंगा आइटम, उनको क्या पता मैं कितने का दे रहा हूं। लेकिन जानते उसने एक बात क्या कही, दुकान उसका, माल उसका, स्टॉक रजिस्टर उसका, आउटपुट दिखा रहा है कि फला आदमी दे गया। उसने कहा सर चेक जो है ना मेरे इस वाले भाई के नाम में बना दीजिएगा। क्यों सर, वो ज्यादा लग के आया था और मैं अगर इतने कम में निकालूंगा तो वो सर दिखेगा। आप तो सर समझते ही हैं। मैंने कहा मुझे क्या, चेक जिसके नाम बोल उसके नाम बना दूं। उसके पर्सनल भाई के नाम बना के आया। क्या बात कर रहे हैं भाई, भाई पर्सनल है कि नहीं गारंटीड है क्या? उसके पर्सनल भाई के नाम बना के आया। इसको मार्केट में कहते हैं एंट्री का काम, इसी को कहते हैं। वो ये सीए काउंसिल में ये खड़े हुए ना भगवान लाल जी, इनका वो पोस्टर आया तो क्या कहते हैं, एंट्री ऑपरेटर, यही होते हैं एंट्री ऑपरेटर। तो अभी तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो उसने कहा साहब बैंक का वो चेक वो का स्टेटमेंट भी मंगवाइए। देखिए इसने कितने सवालों के बाद ओके किया, 5 सवालों के बाद 5 रिकॉर्ड देखे एक ट्रांजैक्शन के लिए। और एक वो सीए था जिसने एक देख करके ही कागज ओके कर दिया, एक ने 2 कागज देखे और ओके कर दिया, एक ने 3 कागज देखे वो ओके कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि आप कब संतुष्ट होंगे किसी ट्रांजैक्शन के ट्रूथनेस एंड फेयरनेस से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर से शुरू करता हूं। SA 200 said what? Auditor has to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient means quantity of audit evidence. Appropriate means quality of audit evidence. So, it is up to you to obtain audit evidence, to obtain quantity of audit evidence, to decide about the quality of audit evidence. अब तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग है ना, कब कौन क्या डिसाइड करेगा, कितने पे वो सच मान लेगा, कितने पे वो नहीं सच मानेगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप सिंगल एंट्री का सवाल बनाते हैं, तो कैसे आप बनाते हैं क्वेश्चन? जनरली आप ये करते हैं कि पहले आप बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं बैलेंस शीट, और उसके बाद आप उससे रिलेटेड वर्किंग नोट बनाने की कोशिश करते हैं। जो इंफॉर्मेशन सवाल में है पहले आप उसको फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद एक एक वर्किंग नोट बना करके एक एक को आप डालने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने 10 वर्किंग नोट बनाई और एक स्टूडेंट है जिसने 7 वर्किंग नोट बनाई और बाकी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके डाल दिया। बैलेंस शीट तो दोनों की सही है, लेकिन अब आप ही बताइए किसकी क्वालिटी ऑफ आंसर ज्यादा बढ़िया है? जिसने सारा बनाया। अब
अब आपको समझ में आ रहा है कौन कब सेटिस्फाइड हुआ, किसने सेटिस्फाइड हुआ। अब देखिए ये स्टूडेंट भी जानता था कि इसको 3 और बनानी चाहिए, शायद टाइम कम था तो नहीं बनाया, शायद अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा था, अरे ठीक है यार इतना तो मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूं, ये तो सवाल मेरा पढ़ा हुआ है यार, फैक्ट फिगर के साथ आ गया, अब तो बस मुझे भरना ही है। 3 अवॉइड कर गया। 3 जानता ही नहीं था वर्किंग नोट कैसे बनेगी, उसने कहीं पूछ करके भर दिया कि यार ये वाले आइटम नहीं निकल रहे, तू बता दे जरा सा मेरे को। उस साइड वाले ने बता दिया, हो गया। हो गया। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आपको तो बता दिया गया है, आपको तो बता दिया गया है कि कितना काम करना है, आपको तो बता दिया गया है, लेकिन आप कितना करेंगे और कितना नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको और दूसरे धंधे पे जाइए। एक केस आप हाई कोर्ट से हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वही केस आप जीत जाते हैं। दोनों ही केसेस वकील ने प्रेजेंट किए थे। इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ उन्हीं कागजों में से एविडेंस और निकाल के रखे होंगे जो कि वो हाई कोर्ट वाला नहीं कर पाया। एमबीबीएस के प्रोफेशन पे आइए, एक मरीज ठीक हो जाता है, दूसरा डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको और बिगाड़ देता है, तीसरे के पास जाता है, वो फिर ठीक हो जाता है पूरा। कैसे होता है? डॉक्टर तो सारे एक ही उसी मान लीजिए कॉलेज से क्वालिफाई करके गए। ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है, स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ऑडिटर्स इनक्विजिटिवनेस, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जितने जरूरी सवाल हैं उतने जरूर पूछें। वास्तव में आपसे क्या उम्मीद की जाती है? Every auditor is supposed to reduce the audit risk and give an appropriate opinion. For this purpose, he is
हेलो, हाँ अभी क्लास में हूँ, 2:30 बजे आ जाऊँगा। यस प्लीज। ये पढ़ा आपने? देखिए, आपके लिए बहुत इजी करके लिखने का मेरा इरादा रहता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है आप छोटे बच्चे हैं, तो देखो आपसे तो उम्मीद की जाती है कि आप एप्रोप्रिएट ओपिनियन देंगे और इसके लिए आपको पूरे अधिकार भी दे दिए गए। अब जब अधिकार दे दिए गए तो आप इवेल्युएट कीजिए, लेकिन यहीं पे तो सारी क्वालिटी आ जाती है। अब जब आप इवेल्युएट करने जाएंगे तो आपको ऑडिट टेक्निक बताई गई है, किस चीज को आप कितना देखेंगे ये आपको बता दिया गया है। अब उसमें से आप क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब कौन सा ऑडिटर किसी ट्रांजैक्शन की ट्रूथनेस एंड फेयरनेस को लेकर के कब संतुष्ट होगा, ये वो ऑडिटर डिसाइड करेगा ना, ये आईसीआई थोड़ी कह सकता है। अब आप एक दुकान में ऑडिट करने जाएंगे, वहां भी बोला जाएगा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करने को, ये आईसीआई बोल देगा कि आप वाउचिंग कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए, लेकिन कितनी करिए ये तो आप डिसाइड करोगे भाई। एक कंपनी में जाओगे वहां भी वही वाउचिंग वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन कितनी करनी है तो आप डिसाइड करेंगे। इसका मतलब हर ऑडिटर का जो सेटिस्फैक्शन का लेवल होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। ये आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये जो लिखा ये कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अब इसको एक और छोटे से एग्जाम्पल से लो, अपने ऊपर लो ना। आज आप सुबह मेरा ख्याल है 6:30 बजे 7 बजे मैक्सिमम आप घर से निकल गए होंगे, ठीक बात है। तो आप 6:30 7 बजे निकले और फिर आप यहां पे आ गए, तो फिर आप बस आपका टॉर्चर शुरू हो गया। आप फिर अकाउंट और क्या एसएम एफएम क्या क्या है, करंटली अभी आप मुझे झेल रहे हैं, फिर हो सकता है अभी कुछ और, मतलब ये रोज की कहानी है। ऑडिट में तो आपका रोज का ही धंधा होगा, तो ये रोज की कहानी है। और आप यहां से फिर 4 साढ़े 4 बजे खाली होते हैं, फिर आप घर जाते हैं, और घर जाते हैं तो कुछ लोग अपने घर जाते हैं, कुछ लोग दूसरों के घर जाते हैं। दूसरों घर से क्या मतलब भाई, कई बच्चे किराएदारी में रहते हैं तो घर तो दूसरे का ही है ना भाई। तो जाते हैं आप, जाने के बाद फिर आपका भाई एकदम रुक रहता है। आज भी आपकी कहानी यही है, लेकिन आज आप घर जा रहे हैं, घर दरवाजा अंदर से बंद होगा, आपने बेल वेल बजाई, दरवाजा खुला, आप बिल्कुल आज गाना गाते हुए घर में घुसे। एकदम गाना गाते, बदतमीज दिल बदतमीज। अरे सर, आप बैग तो उधर फेंका, एकदम सीढ़ी बजाते हुए अपने कमरे में घुस गए। कमरे में थोड़ी देर बाद चेंज वेंज करके उठे, आप घर में जाते हैं कपड़े चेंज करते हैं, सीधा बाथरूम में एकदम शावर खोल के नहाना हो रहा है। अबे क्या बात है, ये आज सुबह भी नहा के गया था, अभी आने के बाद भी। मतलब जिसकी जिंदगी का मोटो है कि नाचीज की जिंदगी में नहाना भी एक गम है, और सुबह उठ के मुंह धोता हूं, यही क्या कम है?
वो 2 दफा नहाने में लगा हुआ है, दरवाजा बंद, बाहर। ऑडिटर ने पूछा, बेटा बेटा कुछ खाएगा? और नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं आज खाने का। खाना खाएगा मैंने? अबे क्या हो गया, रोज तो आता था तो पहला वर्ड यही होता था, कुछ खाने को आया ना, निकालो लगाओ, मैं बस हाथ भी धुल के आ रहा हूं। आज तो खाने का ही नहीं। अब आपने वो लाइन पढ़ी थी ना, while evaluating the audit evidence, the auditor comes across a situation which arouses his suspicion. Now the suspicion of the auditor has started arousing. क्या बात है आज? Anyway, भाई फिर अपने कमरे में, अब उसका दरवाजा अंदर से बंद। ऑडिटर ने सोचा बच्चा पढ़ के आया, सो गया, और यहां तो लौट के म्यूजिक की आवाज आने लगी। क्या बात है? ऑडिटर ने एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किया। सबसे पहला एविडेंस फोन, मिस कॉल देखो। मैनेजमेंट समझदार, मिस कॉल को तो छोड़ो, उसमें जितनी भी मिस है उन सबका कॉल रिकॉर्ड डिलीटेड है। कुछ मिला नहीं ऑडिटर को, ऑडिटर को कुछ मिलना नहीं था, लेकिन ऑडिटर का मन ही ना माने। नॉक करके दरवाजा खुलवाया, बाहर आ चल। मैनेजमेंट बाहर। अरे देखिए, मैनेजमेंट आपसे ज्यादा स्मार्ट होता है, पक्का मान लीजिएगा। ये पूरा ऑडिट का गेम यही है। They try to outsmart you and you have to outsmart them in their own game. Then you will win. Otherwise they will take a ride on you. अब हाँ भाई, कहाँ थे आज? कहाँ थे आज मतलब? पढ़ने गया था? मतलब कहाँ पढ़ने चले गए थे? ना खाना खाना है ना कुछ करना है। आपको पता है सीए क्या होता है? किया है आपने कभी सीए? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं किया। कर तो तू ही रहा है, खानदान का चश्मे चिराग तो तू ही है। फिर तो बड़ा कहाँ गया था? अरे आपको पता गया, पेपर आ रहा है, इतनी टेंशन सिर पे पड़ी पड़ी है। कहाँ गया था? नहीं नहीं, बताना तो पड़ेगा। मैनेजमेंट तैयार, उसको मालूम है सवाल आने वाले हैं, उन्हें फ्रॉड किया है ना, उसको पता है ये सवाल आएंगे, क्योंकि एरर गलती से हो जाती है। फ्रॉड तो पूरा स्कीम बना के होता है। फ्रॉडुलेंट आदमी को पता होता है यहां पे पकड़ा गया तो उसको क्या बोलना है, वहां पे पकड़ा गया तो उसको सब पता है, उसको पूरा स्कीम बना के रखा है। फ्रॉड अकेले होता भी नहीं, फ्रॉड होता मिली भगत से। और वो क्या, अरे उसके यहां था, आपको मालूम नहीं है, उसके यहां मैं कंबाइंड स्टडी कर रहा था। कंबाइंड स्टडी हो रही थी। किसके यहां हो रही थी कंबाइंड स्टडी? किसके यहां हो रही थी? वो मेरा फ्रेंड ही है, वो विकी। विकी है, मैंने तो नाम नहीं सुना। अरे है ना, फ्रेंड है, उसके साथ कंबाइंड स्टडी करने का प्लान बनाया है और हम करते हैं कंबाइंड स्टडी। उसके बाद दिन भर वो खाना भी उसी क्या खाया। अच्छा, ऑडिटर का मन फिर नहीं माना। उसने कहा सर वेरिफिकेशन कराओ। यू मेक ए कॉल टू हिम, आई विल टॉक। मतलब ऑडिटर अब पर्सनल वेरिफिकेशन पे आ गया। मैनेजमेंट हैज फोरसीन दिस एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। उसको पता था ये काम हो सकता है, तो उसने विकी को पहले पता रखा था, देख भाई ऐसा है, आज मेरी कहानी तो कल तेरी कहानी, आज तू मुझे बचाएगा तो कल मैं तुझे बचाऊंगा, सुन ले, तैयार है? बहुत बिल्कुल तैयार हूं यार, जो कहे तेरे लिए जान हाजिर है, मैं जो कहेगा बोल दूंगा। भाई अगर ऐसे से फोन आएगा ना, बस इतना कह दियो, हाँ मेरे आएगा, यही बता पड़ा था,
हाँ मैम, हाँ बेटा, आंटी नमस्ते, सुर खींच के। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, ये तुम्हारे यहाँ था, मतलब हाँ की मेरे आई था, और पढ़ाई कर रहे थे, अब एग्जाम आने वाला, कंबाइन शुरू हो रही थी, और आपको तो पता है आंटी क्या मतलब, ये क्या मेरे घर का मेंबर नहीं है, मैं मतलब इसको खाना नहीं खिला सकता, मैं कोई पराया हो गया हूँ क्या? मैं आपके घर आता हूँ तो मैं कभी खाना खा के नहीं आ सकता? रहा मेरे साथ, मैं खाने जा रहा था तो मैंने इसको भी कह दिया, वो खाना खा के गया। हाँ ठीक है, पढ़ाई कर रहा था, और हाँ आज हम लोगों ने बहुत काम किया है। अच्छा ठीक है, नहीं वो तो तेरा ही घर है, तुम दोनों भाई हो, मेरा घर तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर इसका घर है। हाँ तो ठीक है, हाँ मैं समझ गई, समझ, ओके थैंक यू, बाय। नमस्ते आंटी, इधर फोन रखा, उधर मैंने लगा, पता चला आपको, ये करो वो करो, मेरा बच्चा तो जाना। अच्छा ठीक, सिर दबा दूं, बाम लगा दूं? नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा तू जा, जा, जा। बहुत अच्छा बेटा, कल फिर जाइयो। अभी वो भाई दरवाजे तक पहुंचा था, तब तक सीनियर पार्टनर आ गया। अबे इधर इधर, अब क्या? हाँ खड़ा हो। हाँ खड़ा हो गया। अरे मैंने अभी उसको इतना पूछा है, बेचारा पढ़ के आ रहा है। तुम चुप रहो यार, है तो मेरा ही खून ना, तुम चुप रहो एक मिनट। हाँ कहा था बे? ओ अभी आपके जूनियर पार्टनर ने पक्का वेरिफिकेशन किया है, और आप फिर पूछ रहे हैं? जूनियर तो जूनियर ही है ना, था कहां? बताओ ना। अब सी जूनियर पार्टनर हैज वेरीफाइड, देन जूनियर पार्टनर विल हैव टू स्टैंड ऑन हिज ओन, will have to stand on his own. तो जूनियर पार्टनर इज ट्राइंग टू विंडिकेट हिज और हर स्टैंड वॉट एवर दैट मे बी। हाँ मैंने अभी वेरीफाई किया, एकदम मैंने पता लगाया, ये वहीं पे था, वो कोई परेशानी नहीं है, वहीं पे था ये। तुम चुप रहो। हाँ भाई कहां थे? विकी क्या था? वेरीफाई कराओ जी, अभी वेरिफिकेशन हुआ, फिर कराओ, फिर कराया। अब इस बार आओ। अंकल नमस्ते। हाँ नमस्ते, तुम्हारे यहां था। अब वो वही एकदम रटा हुआ एकदम स्टेटमेंट दोहरा रहा, पूरा पैराग्राफ उसने रट रखा है। ना एक मिनट, ये तुम्हारे यहां था जी अंकल? ओके, कब पहुंचा था? अब वो 8 बजे आ गया था। तो पढ़ाई कर रहे थे? हाँ पढ़ाई कर रहे थे। तुम्हारे यहां से 4 बजे निकला? हाँ अंकल 4 बजे निकला। खाना खा के दिन भर था तुम्हारे साथ? हाँ दिन भर था, पढ़ाई हो रही थी। हाँ अंकल पढ़ाई हो रही थी। अभी ना वो एक मिनट, कंबाइन की ऐसी तैसी, एक मिनट। तो सुबह पहुंचा 4 साढ़े 4 बजे, मतलब सारा दिन तुम्हारे यहाँ था, तुम्हारे साथ बैठा हुआ था, सोफे पे चेयर पे, खाना खाया तुम्हारे साथ। जी 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 जी। अच्छा ये बताओ जी अंकल, इसने ऊपर से नीचे तक कपड़े किस कलर के और कौन से पहन रखे थे? मैनेजमेंट यहां फंस गया। इतना तो सोचा ही नहीं था कि ये सवाल भी, और वो एकदम से हैरान हो गया कि भाई टी शर्ट बोलूं कि शर्ट बोलूं कि जीन्स बोलूं कि ट्राउजर बोलूं, जूते कौन से, स्पोर्ट शू की चमड़े वाले, क्या बोलूं? अब जैसे उधर से वो अंकल ऐसा है ना, वो ऐसा है ना, हाँ ठीक है मैं समझ गया। देखो भाई जूनियर पार्टनर, आज साबित हो गया कि ये मेरा ही खून है।
क्या है कि आपको ये डिस्क्रिशन यूज करनी है पूरी। अब ये इफ दिस डिस्क्रिशन इज यूज्ड इन ए रीजनेबल मैनर, then you will arrive at a proper conclusion. If this is not used in a reasonable manner, then the opinion of the auditor भरत ये देखने दे, बंद कर इसको। ये क्या है, पूरी रामलीला बुला रही है क्या? मे बी इनएप्रोप्रिएट। अब देखिए डेंगर देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन? नाउ अंडरस्टैंड। देखो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब क्या है, जहां क्लीन देना था वहां क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड या एडवर्स देके बैठ गए, सॉरी डिस्क्लेमर या एडवर्स देके बैठ गए। जहां पे मान लो आपको एडवर्स देना था वहां पे आप क्वालिफाइड दे गए, या आपको शक ही नहीं हुआ क्लीन दे गए। जहां पे आपको क्वालिफाइड देना था वहां आपको शक नहीं हुआ क्लीन दे गए। दिस इज कॉल्ड इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, कि क्या होना चाहिए था this is should have been and this is it is, ये देखे आ गए। अब आप ये बताइए कि जहां होना चाहिए था क्वालिफाइड वहां आपने क्लीन दे दिया, ओपिनियन गलत हो गया कि नहीं हो गया? और यूजर इस पे भरोसा करे। यू आर सेइंग कि यूजर शुड पुट हिज फेथ ऑन इट, देयरफॉर whether the user will become a gullible user or not, yes or no, yes or no। अब आपको एक काम करना है, 2 लाइनें और। जिंदगी में बहुत अंधेरा हो गया है, आईसीआई में भी बहुत अंधेरा हो गया है। मैं इसको कैमरे पे कह रहा हूं कि इस अंधेरे को छांटने का जो श्रम करना है वो आप लोगों को ही करना है। थोड़ी देर में ये श्रम आप लोगों के सामने आने वाला है। प्लीज बैठे रहिएगा, चिपके रहिएगा, कुर्सी से कहीं मत जाइएगा। मैं भी यही हूं और बाकी लोग भी यही है। ऑडिट क्लास इज ओवर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। कहां गया? वही पेज चाहता ना। This is it. Yeah, this is it. This is it. This is it. बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने आपको क्या कहा, चिपके रहिएगा। Yes, please.